Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we are going to begin the Platyhelminthes, very important phylum of animal kingdom. So let's back in online class and discuss every matter related to Platyhelminthes. This is all about matter of class 11, subject biology. Helminthes. Phylum number 4, Platyhelminthes. Features of Platyhelminthes. Features. Point 1. Dorso-ventrally flat body. Dorso-ventrally flat body. The whole body are dorso-ventrally flat. It was explained in previous video lecture. The second, it is bilateral symmetry. The symmetry has a bilateral symmetry. Third, body are acoelomate. It means there is no coelomic cavity are found. They all are triploblastic. Triploblastic. Organ level of body organization. Organ level of body organization. And I have also explained regarding the habitat of Platyhelminthes. These are actually parasites. Which kinds of parasites? Endoparasites. The Platyhelminthes are actually the endoparasite of higher animals. Like mammals, like mollusks, like other animals. So they all are endoparasites. Endoparasite means living organisms that live inside the body of host called as endoparasites, and living organisms that are parasites from outer surface that take nutrients from outer side like mosquito called as ectoparasites. I hope your concept regarding endo and ectoparasite is clear. This represents the endoparasite and this represents the ectoparasite. Now the point number 7. Animals that are parasitic nature has very least development of their digestive system, of their nervous system. So digestive system and nervous system. Digestive system and nervous system are less developed. It is very less developed. Why? Because of having the endoparasitic property. जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी के घर में रहेगा तो उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप पका पकाया खाना खाइए, आपका इंटेस्टाइन कमजोर हो जाएगा. ठीक है, इसलिए अपने डाइट में सलाड, फाइबर या कोई भी अनाज हमेशा यूज करते रहना चाहिए. ठीक है, जब से हम लोग खाना कुक्ड फूड आइटम खाना चालू कर दिए हैं, हमारे जो टीथ हैं वो शार्प से ब्लंट हो गए हैं. ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इंटेस्टाइन पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करने वाले हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल के वेस्टिजियल पार्ट्स अवेलेबल आज भी है जो बताते हैं कि हमारा बॉडी पहले रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता था. अब नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा बॉडी अब कुक्ड फूड आइटम्स पे पूरी तरह से डिपेंड हो गया. ठीक है, 8 आते हैं. 8 बॉडी एक्चुअली रिप्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं. रिप्रोडक्शन बेसिकली बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल. What do you mean by bisexual? Male and female reproductive system found in the same body. When male and female, suppose that this is the body having the male and female reproductive system, that is known as bisexual. And if organism is male and other organism is female, then that kinds of organisms is known as the unisexual organism. 9. Indirect development means larval stage are found. Development indirect. Development indirect means larvae are found. I have introduced you, there is the direct development and indirect development. Human baby
is the result of direct development. Means human baby is look like the human, having the two leg, having the two hand without tail, and the face and every body structure are similar to the adult one. Copy में internal fertilization, internal fertilization, excretion. In platyhelminthes, excretion occurs through very specific cell called as flame cell. Excretion through flame cell, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है. Excretion in our body occurs through well developed excretory system having kidney, ureter, urethra, urinary bladder, etc. But in platyhelminthes there is very specific cell called as flame cell. फ्लेम का मतलब होता है जो लपट और लौ, ज्वाला बोलते हैं इसको. तो इसमें कुछ ऐसे सेल होते हैं जो लौ की तरह से, जैसे जलता हुआ कैंडल की तरह से स्ट्रक्चर होता है. मैं बना दे रहा हूं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जैसे कोई आग जल रहा हो. ठीक है, और ये एक छोटी सी ओपनिंग होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल. फ्लेम सेल. सो फ्लेम सेल क्यों नाम पड़ा? बिकॉज ऑफ लुक लाइक द फायर. This is the opening of flame cell. Opening of flame cell, and this is known as protoplasmic processes. Protoplasmic processes. ये उभरा हुआ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है. तो ये कहानी एक्सक्रीशन की खत्म हो रही है यहीं पे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 12. इसमें जो डाइजेशन होता है बेसिकली बहुत सिंपल होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही होता है. ठीक है, ये इंजेक्शन वगैरह सॉलिड फूड आइटम गेन नहीं करते. ऐसा नहीं एप्पल देख लिया खा लिया, नहीं. ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पैरासाइट्स में हमारे बॉडी में रह रहे हैं. हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में रह सकते हैं अगर हम इन्फेक्टेड फूड आइटम कुछ खा रहे हैं, यानी कि ऐसे फूड आइटम खा रहे हैं जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज अवेलेबल हो. उसको हम लोग अगर इंजेस्ट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में अनफॉर्चुनेटली आ जाते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ठीक है, हमको यही जानना है कि ये हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी में रह रहे हैं तो ये कैसे अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं. ये माउथ से नहीं गेन करते, ये अपने बॉडी सरफेस से दूसरे के बॉडी वॉल, इंटेस्टाइन के बॉडी वॉल से न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं. जैसे इनके बॉडी पे जैसे टेप वर्म है, टेप लाइक स्ट्रक्चर होगा ही. इनके बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे सिलिएटेड इसमें स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कोमिडियल लेयर बोलते हैं. दिस कॉल्ड कोमिडियल लेयर. कोमिडियल लेयर, एंड दिस रिप्रेजेंट द बॉडी सरफेस. बॉडी surface. This represent the body surface. Listen carefully. This represent the body surface. ठीक है, this represent the body surface. ठीक है, कोमिडियल लेयर represent the body surface. अब ये बॉडी हेड और टेल से मतलब नहीं है, ये बॉडी से अपने फूड गेन करते हैं. जैसे सपोज दैट मैं खड़ा हूं और बगल में प्लेट में कोई कुछ रखा हुआ खाने वाला, मैं उसी पे सट जाए, अगर मैं सट गया खाना मुझे मिल गया. ये उस तरह से फूड न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं. ठीक है, जो एडमिटेड नहीं है उनको पूछना है भैया एडमिशन करो. एडमिशन. चलो आते हैं नेक्स्ट. हम नेक्स्ट की बात करें तो ये एग्जाम में पूछता है, नेम द ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब फूड थ्रू द बॉडी सरफेस. तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज. और उस बॉडी सरफेस का नाम क्या है, कोमिडियल लेयर. इसको नोट कर लिया होगा आई होप. पैरासाइट होते हैं. पॉइंट नंबर 3, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल. डाइजेनेटिक और मोनोजेनेटिक सब लोग अच्छे से समझेंगे. डाइजेनेटिक और मोनोजेनेटिक क्या होता है सब लोग इसको अच्छे से समझेंगे. ठीक है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है. देखो डाइजेनेटिक और
मोनोजेनेटिक बेसिकली पैरासिटिक नेचर होता है, ठीक है। पैरासाइट का जो नेचर होता है, पैरासाइट की जो साइकिल होती है ना, साइकिल, वो या तो डाइजेनेटिक हो सकती है, डाइजेनेटिक, या फिर मोनोजेनेटिक हो सकती है, मोनोजेनेटिक। पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है या तो डाइजेनेटिक हो सकती है या तो मोनोजेनेटिक हो सकती है। अब आते हैं डाई मीन्स क्या होता है बायोलॉजी में, उसको 2 बोलते हैं, और मोनो मीन्स क्या होता है 1। अगर कोई होस्ट है उसका, अगर कोई पैरासाइट है वो सिर्फ एक ही होस्ट में सर्वाइव कर रहा है, उसी से निकल के बाहर जा रहा है, बाहर से फिर उसी में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं मोनोजेनेटिक, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जिसका कोई होस्ट नहीं होता उसको फ्री लिविंग बोलेंगे, बट ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल होस्ट कॉल्ड एज मोनोजेनेटिक and organism having 2 hosts called as digenetic. Suppose that this is parasite and this select the host number 1 for the complete of its half life cycle, and after release from host number 1 it will select the host number 2. Then this kind of parasite is known as the digenetic parasite. Suppose that this is another kinds of parasite and this select the host, this select the host 1, and after release it will further select the host 1, it will further select the host 1. This is called as the monogenetic, this called the monogenetic. I hope your concept regarding monogenetic and digenetic is clear. हो गया कि नहीं? तो इसमें, तो इसके लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। एक होस्ट में कुछ लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, दूसरे होस्ट में अपनी दूसरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, और इसमें क्या उसी होस्ट से निकल के फिर उसी होस्ट को अपना टारगेट करेंगे और उसमें लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं हुआ था। एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, लिसन, पहला लिख लो कॉपी में, टीनिया सोलियम, इसको क्या बोलते हैं? पॉर्क टेप वर्म। टीनिया सोलियम कॉल्ड पॉर्क टेप वर्म, अंडरलाइन कर देना, ये बायोलॉजिकल नेम। टेप वर्म इसको बोलते हैं क्योंकि ये टेप जैसा होता है, ठीक है, और ये पॉर्क को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉर्क टेप वर्म। नेक्स्ट, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका, इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। और ये मैमल्स के लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर सिरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको फैसियोलिएसिस बोलते हैं। ऐसी बीमारी इसमें फैसियोला हिपैटिका लीवर को इन्फेक्ट करके लीवर को डैमेज कर देता है, उस बीमारी को बोलते हैं फैसियोलिएसिस। और ये टीनिएसिस काज करता है पॉर्क में, ठीक है, यानी कि पिग को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की मैं बात कर दूं, प्लेनेरिया नाम सुना होगा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया 10th में पढ़ा होगा, रीजनरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा होगा, रीजनरेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये प्लेनेरिया फ्लैट वर्म यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का ही एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सैजिनेटा, इसको बीफ टेप वर्म बोलते हैं, बीफ टेप वर्म, बीफ टेप वर्म। ये काऊ को इन्फेक्ट करता है, इसका होस्ट जो है काऊ है, पॉर्क टेप वर्म का होस्ट जो है पिग है। फैसियोला हिपैटिका ये हायर मेंबर्स को, हायर मैमल्स को के लीवर को इन्फेक्ट करता है, और प्लेनेरिया ये फ्री लिविंग होता है, ये पैरासाइट नहीं होता है, ठीक है। बातें क्लियर है? अच्छे से इसको देखेंगे। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो इधर, वो ऐसे होता है बॉडी में, ये होस्ट के बॉडी में ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे ये फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है टीनिया सोलियम, फीते के जैसा, रिबन के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है टीनिया सोलियम। बहुत खतरनाक जानवर है ये, ऐसे रिबन के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज द टीनिया सोलियम, और ये बहुत बड़ा होता है, टीनिया सोलियम बहुत बड़ा होता है। मैं तो थोड़ा सा ही बना दिया, मेरे पास जगह नहीं। इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं हेड, और रियल में ये हेड होता ही नहीं, रियल में ये हेड होता ही नहीं।
इसको बोलते हैं नेक। दिस नेक इज आल्सो नोन एज स्ट्रोबिला। दिस नेक इज आल्सो नोन एज स्ट्रोबिला एंड इट इज अनसेगमेंटेड। इसमें सेगमेंट नहीं मिलेगा, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। ठीक है, इसके बाद ये जो पार्ट्स है ये सब सेगमेंटेड होंगे, यानी इसमें आपको लाइन लाइन मिल जाएगा कि सेगमेंट मिल जाएगा, क्लियर कट सेगमेंट मिल जाएगा। ये सब पॉइंट्स जो है ये लाइन लाइन ये जो दिख रहा है इसको प्रोग्लॉटिस बोलते हैं। दीज लाइन्स आर प्रोग्लॉटिस, प्रोग्लॉटिस। ठीक है, पूरा अंतिम तक के लाइन को बोलेंगे प्रोग्लॉटिस। ठीक है, इधर से ये बढ़ता जाता है और उधर से वो टूटता जाता है, मतलब लास्ट वाला जो पोर्शन है ये टूटता जाएगा, ऐसे टूटता जाएगा। और इसमें भरे होते हैं टीनिया सोलियम के एग। ये क्या है, प्रोग्लॉटिस, प्रोग्लॉटिस। और इसमें भरे होते हैं एग। क्या भरे होते हैं, एग, एग ऑफ टीनिया। ठीक है, इसमें लास्ट में भरे होते हैं एग। और ये इंटेस्टाइन में है, इसलिए जब ये कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल जिस एनिमल में ये है, सपोज दैट ह्यूमन बीइंग में ही है, ठीक है, या पॉर्क में है, ठीक है, तो पॉर्क के एक्सक्रीटरी मटेरियल से ये बाहर आते हैं, या ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी मटेरियल से ये पाउच जो दिख रहा है ना प्रोग्लॉटिस का, जो टूट रहा है लास्ट में, ये पाउच जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल के थ्रू ये बाहर आते हैं, कम्स आउट थ्रू फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल से ये बाहर आ जाएंगे प्रोग्लॉटिस। प्रोग्लॉटिस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द इमैच्योर प्रोग्लॉटिस। इट्स नंबर इज अबाउट 200। इमैच्योर नंबर ऑफ प्रोग्लॉटिस इज 200। मैच्योर कितने होते हैं, 300। मैच्योर प्रोग्लॉटिस इज 300 to 400। एंड लास्ट जो टूट टूट के गिरते हैं, निकलते हैं बाहर, उसको बोलते हैं ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिस। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिस। पीजी लिख दिया, मतलब ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिस। ठीक है, अब ये हेड वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके उधर बता दे रहा हूँ। ठीक है, टीनिया सोलियम तो ये है ही डायग्राम, मैं हेड वाले पोर्शन को उधर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लिसन, सब लोग अच्छे से देखेंगे। हेड वाले पोर्शन को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऐसे एक बहुत खतरनाक, इस तरह से शंख जैसे होता है, शंख, उस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये तो इसका नेक वाला पोर्शन है, नेक, और ये पूरा हेड वाला पोर्शन है। हेड के टिप को बोलते हैं हम लोग रोस्टेलम। क्या बोलते हैं, रोस्टेलम। ध्यान से सबको समझना है, दिस कॉल्ड रोस्टेलम। एंड दिस रोस्टेलम हेल्प टू सेंस द पर्टिकुलर होस्ट। होस्ट का कौन सा एरिया, कहाँ पे हमको खून चूसना है, न्यूट्रिएंट्स लेना है, ये रोस्टेलम का काम है। ठीक है, इसके बाद होते हैं, इसके बाद 2 लाइन स्पाइन के, कांटा होता है इसमें। ठीक है, 2 रॉ, 2 होल ऑफ ब्लेड। इसमें 2 होल ब्लेड का होता है। एक ब्लेड को अगर मैग्नीफाई करोगे, सिंगल ब्लेड को, सपोज दैट मैं सिंगल ब्लेड को मैग्नीफाई कर दिया, तो इतना खतरनाक दिखता है, ये इतना खतरनाक दिखता है। ये क्या है, इसका ब्लेड, ये क्या है, इसका बेस, और ये है इसका पूरा हिस्सा, इसको बोलते हैं हुक। सो बेस, ब्लेड एंड हुक आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पाइन्स दैट आर अरेंज इन द 2 होल। 2 कतारों में होता है, 2 क्यू में होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका सकर। ठीक है, इसके सकर को मैं बीच में ऐसे बना दे रहा हूं, ये सकर है। दिस सकर नॉट हेल्प टू सक द न्यूट्रिएंट्स, दिस सकर हेल्प टू अटैच द टीनिया सोलियम विद द होस्ट इंटेस्टाइन। दिस इज द सकर। ये साइड का सकर है और वो सेंटर का सकर है। दिस इज द सकर, SUCKER, सकर। एंड दिस हेल्प टू attach the tinea solium to the host surface. Only attachment
only attachment. This required only attachment. अब आते हैं कि टीनिया सोलियम खाना कैसे खाता है। जब ये क्लियर हो गया कि इसका हेड पार्टिसिपेट नहीं करता है खाना खाने में, सिर्फ चिपकने में और सेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो ये खाना कैसे खाता है इसको भी चेक कर लेते हैं। एक्चुअल में अगर एक इसका ये वाला हिस्सा मैग्नीफाई करोगे तो तुमको मिलेगा इस तरह से स्ट्रक्चर। टीनिया सोलियम की जो बॉडी डिजाइन है वो ऐसे होती है जैसे ट्रेन की पटरी, जैसे ट्रेन का कोई ट्रैक इस तरह से होता है। मींस कंप्लीट इंसिजन नहीं होता, ऐसा नहीं कि अर्थवर्म की तरह से पूरा लाइन दिखे, नहीं, थोड़ा सा लाइन इंसिजन होगा, उसके बाद डेप्थ के बाद फिर से वापस रिटर्न हो जाएगा। तो ये क्या है, डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट सेगमेंट, और इस पे होंगे छोटे छोटे सीलिया, ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, सीलिया। दिस लाइनिंग इज नोन एज कोमिडियल लाइनिंग, कोमिडियल लाइनिंग, and this comedial lining basically help to absorb the food from the host where it lies. If it lies in the pork, if lies in the pig, then it gain the food material from pig's body. If lies in the human, then it gain the food material from human's body. This is all about structure of the Taenia solium.